हेलो एवरीवन। आज अपना टॉपिक जो है 12th क्लास से चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन चो लिया गया है और मेन टॉपिक है अपना न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दे विच SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो उस तो पहला आप ये जान लें कि हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन हुंदे की है। तो सब तो पहला आप देखांगे कि हेलो अल्केन की हुंदे है। तो देखो अल्केन अपने कोले कोई भी एलीफैटिक चेन हुंदी है कार्बन दी। ठीक है, कार्बन दी चेन दे नाल कोई भी हैलोजन लग्या होए उन्होंने बोलते हैं हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स आर द कंपाउंड्स obtained from alkanes by the replacement of one or more hydrogens by corresponding number of halogen atoms। अच्छा, ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਲਕੇਨਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਲਕੇਨਸ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ X ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ ਆਇਓਡੀਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? The halogen derivatives of alkanes are called haloalkanes. These are also called alkyl halides। इन्हां दा दूसरा नाम हैगा जी alkyl halides। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲੋਜਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? RH ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ H ਨੂੰ R ਨਾਲੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ X ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ RX। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਜਾਂ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ CH3H, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਥੇਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ CH4। ਤੇ CH3H ਲਿਖਾਂਗੇ, H ਦਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕਲੋਰੀਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਲੋਰੋਮਿਥੇਨ ਜਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ CH3Cl। General formula of haloalkanes or alkyl halides is CnH2n+1X, where X is fluorine, chlorine, bromine, iodine and N is 1, 2, 3 and so on. Some common examples of haloalkanes are, common example हैगी है CH3Cl, इन्हों ਆਪਾਂ क्लोरोमिथेन या मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। CH3CH2Br ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। CH3CH2CH2Cl इन्हों ਆਪਾਂ क्लोरोप्रोपेन या N प्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है CH3CH2I आइडोइथेन या इथाइल आयोडाइड। The compound are also known in which more than one hydrogen atom of the alkane molecule have been replaced by halogen atoms। ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਨਾਲ। These compounds are called polyhalogen derivatives of alkane ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? polyhaloalkanes। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਅਰੇਨਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ of the benzene nucleus is substituted by a halogen। ਕਿ ਬੈਂਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ X ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈਲੋਜਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਹੈਲੋ ਅਰੇਨਸ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਨਦਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ these are the halogen derivatives of aromatic hydrocarbons। ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਬੈਂਜੀਨ ਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, which are derived by replacing hydrogen atom attached to the benzene ring by a halogen atom। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਜੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੈਲੋਜਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੈਲੋ ਅਰੇਨਸ ਜਾਂ ਅਰਾਈਲ ਹਲਾਈਡਸ। Therefore, in haloarenes, the halogen atom अपने कोल केड़े हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन is directly bonded to the aromatic benzene ring। aromatic ring ਦੇ ਨਾਲ directly ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ haloarenes। ਤਾਂ examples ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ क्लोरोबेंजीन,
ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ये है जी अपने कोले बेंजीन दे अगर ऊपर CH3 इकल्ला लग्या होए तो उन्होंने टॉलविन कहते हैं, तो नाल अगर आयोडीन लग गया तो 2 आयोडोटॉलविन, या इहदा दूसरा नाम हैगा 1 आयोडो 2 मिथाइल बेंजीन। लास्ट एग्जाम्पल है जी 4 ब्रोमोटॉलविन, इहदा दूसरा नाम है जी 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। The aryl halides are commonly written as ARX। AR मतलब aromatic ring होएगी, X मतलब अपने कोले हेलोजन लग गया है। Where aryl represent AR aryl represent a phenyl group। अपना मेन नेक्स्ट टॉपिक हैगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोकेन्स। हेलोअल्केन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਬੌਂਡਡ ਟੂ ਆ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ। ਕਾਰਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਲੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਕਾਰਬਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦੀ CX ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਪੋਲਰ ਇਨ ਨੇਚਰ। CX ਬੌਂਡ ਪੋਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚਾਰਜ। ये वाला कार्बन जो है पॉजिटिव सेंटर वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। ये वाला जो कार्बन है पॉजिटिव सेंटर है, इत्थे अपने कोले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इन्हां रिएक्शंस दे विच। और ये जो अपने कोले इलैक्ट्रोनैगेटिव हैलोजन हैगा ये पोलराइजेस दी CX बॉन्ड, ये पोलराइज कर दिंदा है, मतलब चार्ज नूं डिवेलप कर दिंदा है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी द पोलर नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मेक्स दैम हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। अच्छा, जो पोलर नेचर है इन्हां दा अल्काइल हैलाइड्स का या हैलो अल्केन्स का, इन्हां नूं की है हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल बना दिंदे हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है जी व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंगर दैन द हैलाइड आयन अप्रोचेस द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल हैलाइड, द हैलोजन एटम along with its bonding electron pair gets displaced and a new bond with the carbon and the nucleophile is formed. These reactions are called nucleophilic substitution reactions। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਾਈਡ ਆਇਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल जो है अटैक करेगा। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल बैक साइड तो आके अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि फ्रंट साइड ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ बैक साइड ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब बाहर ਨੂੰ आ जाएगा लीविंग ग्रुप की तरह। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल जो है बॉन्ड बना लेगा कार्बन के नाल, तो यह हलाइड आयन अपने को बाहर आ जाऊगा, ये बॉन्ड बन गया। एग्जाम्पल के तौर पर की है CH3 CH2Br प्लस OH नैगेटिव अपने को न्यूक्लियोफाइल है, ये की है यदी जगह पर आ जाऊगा, ये जगह पर बाहर चले जाएगा। CH3 CH2OH प्लस Br नैगेटिव, ये अपने को अल्कोहल बाहर आ गया, सॉरी अल्कोहल प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। हाँ जी, हुण है जी न्यूक्लियोफाइल की होंगे। न्यूक्लियोफाइल इलैक्ट्रॉन रिच ग्रुप होंगे है जिन्हों को नैगेटिव चार्ज होंदा है, जिन्हों ने की है अटैक करना होंदा है। न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होंगे हैं, नैगेटिवली चार्ज स्पीसीज ते दूसरे है न्यूट्रल स्पीसीज विद एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन। एक तो जिन्हों के उपर नैगेटिव चार्ज होंगे जिवें OH नैगेटिव, CN नैगेटिव, RO नैगेटिव, RCOO नैगेटिव एंड ऑल। सैकेंड है न्यूट्रल स्पीसीज होंगे पर इन्हों के उपर की होएगा घट तो घट एक लोन पेयर जरूर होएगा, जिवें वाटर है, अमोनीया है, RNH2, R2NH, R3NH, इन्हों के उपर एक लोन पेयर है, ये उपर 2 लोन पेयर है। Therefore, nucleophilic substitution of a haloalkane is described by either of 2 general reactions। तो अपने को 2 जनरल रिएक्शंस होंगी, 2 किवें होंगियां, अगर 2 टाइप्स ने न्यूक्लियोफाइल दियां तो 2 टाइप ही होंगियां न्यूक्लियोफिलिक दियां सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दियां। तो पहली है जी जदों नैगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है
तो अपने कोले की हुंदी है नैगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुंदी है। न्यूक्लियोफाइल है, उन्हें अटैक किया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नैगेटिव चार्ज है, तो RNU प्लस लीविंग ग्रुप अपने को आ गया। नैक्सट है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल गिव्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज अपने को आ जाएगा जिमें कि साल्ट हुंदा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है प्लस R ये अपने को लिखी है X नू बाहर लीविंग ग्रुप चले जाएगा और RNU पॉजिटिव आ जाऊगा। क्यों? क्योंकि ये उपर कोई नैगेटिव चार्ज नहीं है, नहीं तो नैगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लेना सी। हुण कल्ला पॉजिटिव चार्ज रह गया तो अपने को पॉजिटिव चार्ज आ जाऊगा। इन दीज रिएक्शंस द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच लूजेस इट्स बॉन्ड टू कार्बन एंड टेक ऑन एन एडिशनल पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन उन्होंने की बोलते हैं लीविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। केवल ये रिएक्शंस दे विच की हुंदा है कि एटम एक एटम या एटम्स का ग्रुप जिहड़ा है वो अपने इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने की कर दिंदे ने लूज इट्स बॉन्ड टू कार्बन, कार्बन दे नाल अपने बॉन्ड नू खत्म कर दिंदे ने, ठीक है। खत्म करन तो बाद उन्हां दे उपर की है एक इलैक्ट्रॉन आ जांदा है, इलैक्ट्रॉन पेयर आ जाता है प्लस नैगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस करके उन्होंने की बोलते हैं लीविंग ग्रुप बोलते हैं। तो हैलाइड आयन्स जिहड़े हुंदे ने वो बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप हुंदे ने, गुड लीविंग ग्रुप्स। एक गल नोट रखनी है, याद रखनी है कि लीविंग ग्रुप जिन्ना ज़्यादा वधिया होएगा उन्नी जल्दी ही अपने को न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होएगी। बैटर द लीविंग ग्रुप द फास्टर इज द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ जी, तो लीविंग ग्रुप अबिलिटी तो की है, आयोडीन नैगेटिव दी ज़्यादा हुंदी है, ठीक है, ये बेस्ट हुंदा है लीविंग ग्रुप, दैन ब्रोमीन, दैन क्लोरीन, दैन फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि अपने कोल फ्लोरीन जिहड़ा है ना बहुत ज़्यादा हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच। जिन्नी ज़्यादा इहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होएगी कि हैलोजन दी उन्नी जल्दी उन्नी लेट है कि है ग्रुप बॉन्ड अपना ब्रेक करेगा। जिन्नी घट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होएगी एज कंपेयर टू ऑल हैलोजन एटम्स उन्नी जल्दी की है ये जो बॉन्ड है कार्बन दे नाल ब्रेक कर जाएगा, तो इन्ना ही ये ज़्यादा वधिया लीविंग ग्रुप है। हाँ जी, नैक्सट है जी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो टाइप्स ने, एक है SN2 एक है SN1। SN2 का नाम है सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिक्यूलर और SN1 का नाम है सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। तो सब तो पहले आप करांगे SN2 रिएक्शन। ये जी रिएक्शन है ये अपने को मिथाइल ब्रोमाइड ते हाइड्रोक्साइड आयन दे नाल हुंदी है, तो अपन की प्रोडक्ट दिंदे ने मिथेनॉल, ठीक है। जिमें क्या है CH3Br अपने को मिथाइल ब्रोमाइड है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये अपने को मिथेनॉल दिंदे ने प्लस जो अपने को लीविंग ग्रुप है वो आ जाता है। ये रिएक्शन फॉलोज आ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि की है अपने को रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ते। कंसनट्रेशन दे विच अपने को रिएक्टेंट्स दी हुंदी है, ते रिएक्टेंट्स की हैगे ने अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, दैट मीन्स दीज बोथ, ये दोनों है, ठीक है। इस करके की है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है, इस करके इहदा नाम की पिया है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों? Because two molecules take part in determining the rate of reaction. This type of reaction occurs in single step through the formation of a transition state. अच्छा हुण ये जिहड़ी रिएक्शन है अपने कोले इहदे विच की है एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। वो जिहड़ी ट्रांजिशन स्टेट होएगी वो अपने कोले अनस्टेबल होएगी। हाँ जी, ये अपने कोल रिएक्शन है। मिथाइल क्लोराइड अपन ने लिया, मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, प्लस अपने को अपना न्यूक्लियोफाइल है, एक ही है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड तो अटैक कर रहा है। तो दसिया ही है क्यों बैक साइड तो करता है, क्योंकि फ्रंट साइड ते तो क्लोरीन लग्या होया है, ठीक है। उस तो बाद की है ये जो अपने को एक स्टेट बनेगी एक की होएगी ट्रांजिशन स्टेट होएगी। ट्रांजिशन स्टेट क्यों होएगी? क्योंकि ये की है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि कार्बन दे 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन रहा, पर अपन तो पता है कि जिहड़ा कार्बन हुंदा है वो अपने कोले 4 बॉन्ड बनाउंदा है, उहदे कोले 4 इलैक्ट्रॉन लैण दी जां 4 इलैक्ट्रॉन छड्डण दी
टेंडेंसी हुंदी है, ठीक है। वो अपने 4 बॉन्ड होर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन नाल बना कर सकदा है, मतलब शेयरिंग कर सकदा है इलैक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये की है 5 बॉन्ड बन गया जो कि हो नहीं सकता, इसलिए इत्थे की शो हो रहा है, आ वाले जो अपने कोल डॉटेड लाइन्स ने ये शो कर रही ने कि बॉन्ड ये फॉर्म हो रहा है, पर ये वाली डॉटेड लाइन्स की शो कर रही ने कि अपने कोले बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जो अपने को आएगा वो की होएगा, ये वाले मॉलिक्यूल का अपने कोले OH का बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के नाल, प्लस ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा सी ये जमा ब्रेक हो जाऊगा, अपन प्रोडक्ट मिल जाएगा मिथेनॉल, तो ये आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल है जिन्होंने आप लीविंग ग्रुप कहने हैं, ये बन जाऊगा। हाँ जी, हुण आपां गल करिए ट्रांजिशन स्टेट बारे। The transition state is unstable because carbon atom is simultaneously bonded to 5 atoms. 5 atoms नाल हो गिरिया होया है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। Therefore changes to product in which bromide ion या कि आप कह सकते हैं chloride ion leaves forming the COH bond, ठीक है। इत्थे आपां की है, आपां क्लोरीन लै सकते हैं, ब्रोमीन लै सकते हैं, ठीक है। तो अपने को की करेगा ट्रांजिशन स्टेट दे विच जो अपने को हैलोजन लग्या है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो लीविंग ग्रुप आपां नूं मिल जाएगा। अच्छा, उस तो बाद है जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। एक दिमाग दे विच क्वेश्चन आउंदा है कि इत्थे आपां ने तीनों ही H लए है, एक अपने को इत्थे CH3 भी हो सकता है, 2 CH3 लगे हो सकते हैं, या तीनों दे तीनों बॉन्ड ही ए वाले कार्बन दे CH3 नाल हो सकते हैं। तो वो आप डिस्कस करते हैं कि रिएक्टिविटी की है अल्काइल हैलाइड दी SN2 रिएक्शन दे विच। तो मिथाइल हैलाइड जो है, जो आपने ए वाली एग्जांपल ए वाली रिएक्शन की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਥਾइल हैलाइड ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ हैलाइड, ਸੈਕੰਡਰੀ हैलाइड ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ हैलाइड। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ SN2 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾइल हैलाइड ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ हैलाइड ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਿਥਾइल ब्रोमाइड, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये उहदी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। हाँ जी, नैक्सट आपां करांगे जी SN1 रिएक्शन की हुंदी है। SN1 रिएक्शन दे विच आपां की लवांगे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया अते हाइड्रोजन आयन नूं लवांगे। वो जदों रिएक्शन करनगे तां आपां नूं प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन जो है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक नू फॉलो करती है। ਇਹਦਾ रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ते, किस दी कंसनट्रेशन ते, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दी, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट दी कंसनट्रेशन ते डिपेंड करता है। इस करके ਇਹਦਾ नाम की है SN1 रिएक्शन। जो SN2 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 रिएक्टेंट्स आउंदे आ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ SN2 रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन ਦਾ ਕੀ नाम है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनीमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये की होएगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लवांगे, OH नैगेटिव लवांगे, वो डायरैक्ट की करेगा ये नाल अटैच हो जाऊगा, Br नैगेटिव बाहर आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन की है सिंपल एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इंग्लिश के विच डेफिनेशन की है, this reaction is called nucleophilic substitution unimolecular reaction because only one molecule is involved in determining the rate of reaction. Such type of reactions are generally carried out in polar protic solvents such as water, alcohol, acetic acid etc. जो SN1 रिएक्शन है अपने को की करती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के विच ही कैरी आउट होंदी है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की किहड़े ने, वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एटसैक्ट्रा। अच्छा, हुण पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स किहड़े हुंदे ने? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर पोलर सॉल्वेंट्स दैट हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन that is connected directly to a particular electronegative atom such as OH, NH, etc. and are capable of forming hydrogen bonds with the solute. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होंदे हैं जिन्हां दे कारण की रिएक्शन कैरी आउट होंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि अपने ਕੋਲੇ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, विद दी सोल्यूट, जो सोल्यूट है ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
अच्छा नैक्सट है ਆਪਾਂ मैकेनिज्म करांगे। मैकेनिज्म की है SN1 रिएक्शन का। तो ये जो अपने को रिएक्शन है ये 2 स्टैप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है। फर्स्ट स्टैप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन कैटाइन की ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ पॉजिटिव चार्ज ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ कैटाइन। ਤੇ दूसरे नंबर ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ एनाइन। तो कार्बोकैटाइन मतलब कार्बन के उपर पॉजिटिव चार्ज वो वाला अपने को बनेगा। तो की हुंदा है दी पोलराइज्ड सी हैलोजन मतलब CX या आप की कह सकते हैं CBr अंडरगोज स्लो क्लीवेज टू फॉर्म आ कार्बोकैटाइन एंड हैलाइड आयन। तो अपने को की है कि एक हैलोजन आ गया अपने को सॉरी अल्काइल हैलाइड आ गया, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ये की करता है कि Br ते कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर दिंदा है। ब्रेक करन तो बाद की है इत्थे अपने को पॉजिटिव चार्ज इत्थे अपने को नैगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये की है कार्बोकैटाइन बन गया अपने को। ये जो स्टैप है एक तो ये की है रिवर्सीबल है, बड़ी जल्दी ये की है आपस दे विच रिएक्ट करके वापस चल जाते हैं। ठीक है। ये स्लो स्टैप है। ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ ਸਟੈਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ठीक है। नैक्सट है जी सैकेंड स्टैप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटाइन। ये जो कार्बोकैटाइन बन गया ये उपर हुण अपने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। तो कार्बोकैटाइन इज़ वैरी रिएक्टिव स्पीसीज। क्यों? क्योंकि ये उपर पॉजिटिव चार्ज है। हुण ये कोल की है बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है, बहुत ज़्यादा ताकत है, एबिलिटी है कि ये अपना बॉन्ड बनाएगा किसी भी इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट के नाल या नैगेटिव एलीमेंट के नाल जिहदे उपर नैगेटिव चार्ज होएगा। देयरफॉर इट रैडली रिएक्ट्स विद द न्यूक्लियोफाइल जिमें कि OH नैगेटिव है टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए ये बड़ी जल्दी रैडली मतलब जल्दी रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के नाल। न्यूक्लियोफाइल अपना की है OH नैगेटिव है। हाँ जी। तो ये अपनी रिएक्शन है, ये अपना कार्बोकैटाइन है, न्यूक्लियोफाइल है, ये नाल रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है नैगेटिव चार्ज है तो ये अपने को बॉन्ड बना लेंगे। ये बहुत जल्दी होंगे है, मतलब इनू की बोलते हैं फास्ट स्टैप बोलते हैं। फर्स्ट स्टैप स्लो एंड रिवर्सीबल है, सैकेंड स्टैप अपने को फास्ट स्टैप है। अच्छा जो हुण अपन ने SN1 रिएक्शन की है ये की है एक ये बेस ते एक क्वेश्चन है पेपर च भी आ जाता है कि हाउ डू पोलर सॉल्वेंट्स हैल्प इन द फर्स्ट स्टैप इन SN1 मैकेनिज्म। कि पोलर सॉल्वेंट जिहड़े ने SN1 रिएक्शन दे विच आपां नूं किवें हैल्प करदे ने। The SN1 mechanism proceed through the formation of carbocation। तक पहले स्टैप दे विच कार्बोकैटाइन बनते हैं। It involves breaking of carbon halogen bond for which energy is obtained through the solvation of halide ion with the proton of the protic solvent। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ obtained, એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ कि हैलाइड आयन नू सॉल्वेशन होए, हैलाइड आयन की सॉल्वेशन हो जाएगी विद द प्रोटोन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। दस पोलर सॉल्वेंट्स हेल्प इन आयोनाइजेशन स्टैप बाय स्टेबलाइजिंग द आयन्स बाय द सॉल्वेशन। कि हैलाइड आयन्स की सॉल्वेशन हो जाए और डिजोल्व हो जाए। ठीक है। नैक्सट है जी अपने को रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन दे विच की आपां टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया दैट इज़ दिस। ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ SN1 ਐਂਡ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ SN1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। जो अपने को SN2 मैकेनिज्म है ये सैकेंड ऑर्डर काइनेटिक है, इस करके इनू की बोलते हैं बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। जो SN1 है ये अपने को 2 स्टेप रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन जो है ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ये याद रखना है।
थर्ड है SN1 रिएक्शन दे विच कार्बोकैटायन बनते हैं, पर SN2 दे विच कार्बोकैटायन नहीं बनते। इहदे विच की है ट्रांजिशन स्टेट होंदी है। SN1 रिएक्शन दे विच अपने कोले बोथ साइड तो, बैक साइड तो भी ते फ्रंट साइड तो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पर जो अपने कोले SN2 रिएक्शन है इहदे विच की है सिर्फ बैक साइड तो ही अटैक करता अपना न्यूक्लियोफाइल ते रिएक्शन टेक प्लेस होंदी है। हाँ जी, उस तो बाद है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो SN1 रिएक्शन दे विच की है टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव है, सैकेंडरी घट है, प्राइमरी घट है, मिथाइल हैलाइड सब तो घट है रिएक्टिव। तो SN2 रिएक्शन दे विच की है मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी, सैकेंडरी एंड टर्शरी। अच्छा, जेडे अपने को SN1 मैकेनिज्म है इहदे विच की है कि जेडे न्यूक्लियोफाइल्स ने वो वीक होणगे तां ही रिएक्शन ने प्रोसीड करना है। तो SN2 रिएक्शन दे विच स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल आपां नूं चाहीदे ने। जिहड़ी SN1 रिएक्शन है इहदे विच जो न्यूक्लियोफाइल्स ने उन्हां दी कंसनट्रेशन लो होनी चाहिदी है, और इहदे विच की अपने कोल SN2 रिएक्शन विच हाई कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फेवर दैम। हाँ जी, नैक्सट है जी अपने जो अज अपने टॉपिक किया है उहदे MCQs ने। पहला MCQ हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट रिगार्डिंग SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म तुहानूं चंगी तरह अगर समझ आया होएगा तां ही तुसी जो MCQ ने कर सकोगे। तो चलो पहला आपां देखते हैं पॉइंट की है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। तो SN2 दे विच की हुंदा है कि दोनों ही जो रिएक्टेंट ने उहदे उपर कंसनट्रेशन डिपेंड करती है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इनू आपां बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहने आ, क्यों? क्योंकि इहदे विच अपने कोल यह सैकेंड ऑर्डर काइनैटिक नू फॉलो करती है। तो सैकेंड ऑर्डर है तो मतलब दोनों ही रिएक्टेंट आउणगे, तो यह ऑप्शन सही है। पर आपां ने की है इनकरैक्ट ऑप्शन लभनी है। चलो, सैकेंड ऑप्शन है कंप्लीट मैकेनिज्म टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। तो बिल्कुल SN2 रिएक्शन अपने कोले वन स्टेप रिएक्शन है, ये भी सही है। ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल, बिल्कुल नहीं। ट्रांजिशन स्टेट कभी भी स्टेबल नहीं हुंदी, ठीक है। एक ही हुंदी है अनस्टेबल हुंदी है। तो जी ट्रांजिशन स्टेट है अनस्टेबल क्यों हुंदी है? क्योंकि इत्थे 5 बॉन्ड शो हुंदे हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन भी चैक कर लेने आ। मैकेनिज्म दे विच की है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। तो कि कैटाइन बनन दी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इहदे विच कार्बोकैटाइन बनन दी। तो बिल्कुल SN2 रिएक्शन दे विच कार्बोकैटाइन नहीं बनता है, तो बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर की है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट? हुण आपां ने बिल्कुल सही ऑप्शन ते टिक करना है, ठीक है। रिगार्डिंग यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक केड़ी हुंदी है SN1 रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन की हैगा इट टेक प्लेस इन 3 स्टैप्स। तो 3 स्टैप हुंदी है रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। 2 स्टैप हुंदी है, ये गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली ऑन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के उपर कंसनट्रेशन जो है न्यूक्लियोफाइल के उपर डिपेंड करती है उसकी रेट, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसनट्रेशन ते डिपेंड करती है बट न्यूक्लियोफाइल दे नहीं, रिएक्टेंट्स के उपर। तो यह भी गलत है। द फर्स्ट स्टैप इज द स्लोएस्ट एंड रेट डिटरमिनिंग स्टैप ऑफ रिएक्शन। तो बिल्कुल सही है। जिथे अपने कोल कार्बोकैटाइन बनता है, हाँ जी, ये वाला फर्स्ट स्टैप है। ये विच की है, इनू आपां स्लो स्टैप भी बोलते हैं तो रेट डिटरमिनिंग स्टैप भी बोलते हैं। तो ये विच की अपने कोल है ये रिवर्सीबल भी है, कार्बोकैटाइन बन गया है। तो सैकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है। नन ऑफ द स्टैप्स आर रिवर्सीबल। तो हुणे ही आपां देखिया है कि फर्स्ट स्टैप रिवर्सीबल हुंदा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो अपना आंसर की है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 रिएक्शन। तो सब तो ज़्यादा एक्सक्लूसिवली मतलब सब तो ज़्यादा SN1 रिएक्शन किहदे द्वारा हुंदी है? तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। हाँ जी, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट
प्रोडक्ट देखना की बनता है। जदों अपने कोले सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरोइथेन दे नाल, तो क्लोरोइथेन की हुंदा है CH3CH2Cl, ये अपने कोल की है क्लोरोइथेन है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NaOH ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ CH3CH2OH plus NaCl। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲਕੋਹਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਫਥ ਹੈ ਜੀ identify the nucleophile in the substitution reaction between water and bromopropane। तो bromopropane की होंदा है CH3CH2CH2Br। यह अपना bromopropane जदों ये वाटर नाल रिएक्ट करता है तो की बनाउंदा है अल्कोहल बनाउंदा है, ठीक है, प्लस HBr बाहर चले जाता है। ये अपनी रिएक्शन है, पर आपां ने की पता करना है न्यूक्लियोफाइल किहड़ा है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है अपना वाटर ही है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर कहते ने 2 इलैक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है। तो अपने पढ़िया ही है न्यूट्रल स्पीसीज विद एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ऑप्शन नंबर D अपने की है आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट है 6th MCQ। रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, जो अपन ये वाली रिएक्शन दी हुई है, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ SN1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ। SN1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 2 ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ठीक है। तो वो जिहड़ा कार्बोकैटायन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ SN1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ। ऑप्शन नंबर A अपना आंसर है।